आ गए फिर सारे। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 8 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਸ਼ਨ, ਕਲਾਸ 9th ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਦਈਏ, ਚੈਪਟਰ 8 motion 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 शायद देख रहा होगा सारे आशा करदा। थोड़ा जिहा करी क्वालिटी सेट कर लो। चैप्टर 8 मोशन, ये केड़ा पढ़ रहे हैं आप? फिजिक्स की पढ़ रहे हैं? फिजिक्स फिजिक्स की है, फिजिक्स की है। फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर की रटिंग एंड टाइम डेफिनेशन। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ 3 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਮੈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੇ, ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਇਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 3 ਪਾਸ। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਬਾਇਓ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡਿਸਕੋ ਜਾਂ ਡਾਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ, ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਦੌੜੂਗਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ST। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ST, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ST ਹੋਮ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ST ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਘੈਂਟਿਆ ਨਾ ਸੂ, ਘੈਂਟਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੋਮ 'ਚ। ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲੀ ਆਫਿਸ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਦਾ ਬੰਬੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁੱਲੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਦੀ। ਆਹ ਚੌਕ ਹੈ, ਚੌਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, the particle move from one point to another, the particle
और पर्सन भी कह सकते हैं, जो भी चीज़ है, द पार्टिकल, पर्सन, जो मर्जी कुछ कह दो, ठीक है। वो कादे दे विच है, इज इन द मोशन, इन द मोशन। नो, मोशन नहीं लिखांगे तो मोशन की डेफिनेशन ही है नहीं की, सॉरी गलत लिखता, बड़ा इरेज कर देना है। चलो इरेज कर देने, इन द, ना इन द नहीं लिखांगे, इन्हें लिखांगे द मोशन। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ ही मूव्स, इफ ही शी या कोई भी चीज़ है, इफ इट मूव्स वन पॉइंट टू अनदर। सिंपल जी गल कर रहे हैं, गलत है, रॉन्ग हो गई सारी भाई। हम तो कई लोग गाला कढ़नगे भी, क्यों तू गलत दसदा, तू साडू सही गल दस। सीधी जी गल है, हाँ, द सब्सटेंस, द थिंग दैट मूव from one point to another point to another is said to be na कादे दे विच हुंदा ओह, to be na motion, ताड़ा फेवरेट motion, भजना, ठीक है। कहते हैं भजन दे विच है, कादे दे विच है, एक्चुअली च मोशन दे विच है। थोड़ी ब्राइटनेस वधा दा मैं इत्थों, तां ओह कादे दे विच होगा, मोशन दे विच होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो कादे दे विच होगी, जो वो एक पॉइंट तो दूजी थां ते मूव कर रही है, वो कादे दे विच होगी, मोशन दे विच, ठीक है जी। हुण रेस्ट की गल करिए, जिवें बोर्ड है, ये कादे च है, कादे च पिया, ये कादे च पिया, रेस्ट दे विच। केड़ी पोजीशन च पिया है, रेस्ट दे विच। कादे च पिया है, रेस्ट दे विच पिया, कादे च पिया, रेस्ट दे विच। तो ये सिंपल जी गल है भी मोशन ते रेस्ट दे विच की फर्क है, आपां सिंपल जी इस बारे गल कीती सी ते हुण रिलीज़ कर चुका। ते हुण आपां गल करदे हां अगले पॉइंट ते। अगला तो पहलां आपां सिंपल जिहा फिर ओही चीज़ करदे। हुण तुसीं ये चीज़ सीगी, इहनूं देखिया, तुसीं काहदे नाल देखिया, ओबवियस जी गल अखां दे नाल ही देखिया होगा, कोई होर चीज़ तां नहीं है, तुसीं कैमरे तां है नहीं। तुसीं इस चीज़ नूं काहदे दे नाल देखिया, अखां दे नाल देखिया, है ना। जिवें मान लो आह तुहाडी की है, टुट गया, मोबाइल स्क्रीन है ना, MS सॉरी, इनू तुसीं इत्थे बैठे हो, ठीक है, अज फड़िया रहता है हमेशा ही, ठीक है। इनू जिमें अखां काना देख रहे हो, अखां दे नाल देखिया। तो सिंपल जी गल है, जिहड़ी चीज़ दे नाल आपां मोशन नूं देख रहे हैं, वो की हुंदा है, रैफरेंस पॉइंट। सिंपल जिहा इस ते कंसैप्ट है, कोई उलझण वाली गल नहीं। ਜਿਹੜੇ पॉइंट तो आप किसी चीज़ मोशन में देखते हाँ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रैफरेंस पॉइंट, ठीक है। सिंपल जा उलझ होना कोई भी भी एक मोबाइल स्क्रीन है, तुसीं मोबाइल स्क्रीन तो किनू देखिया, मैनू देख रहे हो, तो आ चीज़ मैं मोशन दे विच हाँ, तो तुहाडी अखां की है, रैफरेंस पॉइंट भी कित्थों देख रहे हो। या मान लो एक गड्डी है, फिर आप गार ते ट्रेन ते आया मैं, गड्डी है पटरी ते है, जाती पी है, ठीक है। तो ये गड्डी जो जाती है, मान लो इत्थे फिर बंदा आ गया अपना मिस्टर कुल्ली खड़ा, ठीक है, है पीदियाँ कौन खड़ा है, कोहली कह लो या कुल्ली कह लो, जो मर्जी कह सको, ठीक है। आप ठीक है, इनू तुसीं देखिया, ठीक है, इनू आप जो देखिया तो ट्रेन की जा रही है, मोशन दे विच है। ट्रेन जिहड़ा बंदा है, जिहड़ा मान लो के है, बंदा के है, वो जो मोशन जा रही है गड्डी, थोड़े टाइम बाद इहदी अखां तो बाद की हो जूगी, दूर हो जूगी, अखां तो की हो जूगी, ओझल हो जूगी। कहने का भाव की अभी इत्थों गड्डी जाऊगी, खत्म हो जूगी, है ना। गड्डी तो रहनी नहीं गई इत्थे, 10 सेकंड मान लो तुम रेलवे स्टेशन जा गड्डी तो टप ही जाऊगी थोड़े टाइम बाद। परंतु इत्थे जिहड़ा खड़ा है, ये पॉइंट की है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। थोड़ा कि आप मोशन दी टाइप्स पढ़ांगे, तो इस तो छेती स्क्रीनशॉट ला लो जे किसी ने लेना। हुण आप करना मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो पहला आप गल करते हैं, एक एक्टिविटी सी NCERT दे विच। NCERT का पेज नंबर सीगा मेरे ख्याल 98 सीगा, 98 पेज नंबर NCERT लैनी तो तुसीं खोल लो।
ठीक है। 98 ਤੇ ਸੀਗੀ डिस्कस whether the walls of classrooms are at rest or in motion। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਮਰਾ ਹੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। परंतु जब आप फिजिक्स के लैवल पर देखिए, सही फिजिक्स के लैवल चंगी तरह जाइए, तो मोशन के विच ये क्यों, पर देखो अर्थ, दैट इज अर्थ, अर्थ ये तो सारे पता भी जी अर्थ है सन के दुआले रोटेट करती है ना, सन के दुआले की घूमती है, जी वॉल्स है काहदे उत्ते है, काहदे उत्ते बनी हुई अर्थ के उपर ही बनी, तो एग्जैक्टली ये काहदे च होणगियां, मोशन दे विच। परंतु जो आप इहनूं देखांगे तो काहदे च दिखणगियां, रैस्ट दे विच। बई इहनूं आपां कोई पक्का डिफाइंड नहीं कह सकते भी रैस्ट च या मोशन च, परंतु जे 100% ये आपां इहनूं ज़्यादातर मेनली कहांगे भी ये काहदे दे विच है, मोशन दे विच है, भी क्योंकि अर्थ की करदी है, रोटेट कर रही है। इसदे सिंपल जा रीजन अगे कि सीगा इत्थे experience move in is rest। have you experienced to train in which your seating appears to move while it at rest। यार इस दे विच इन्हां ने पुछया है बई have you experienced that the train in which you are sitting appear to be move while it is at rest। बई ट्रेन है एक, वो तुहानूं मूव करदी लगदी है ਜਦੋਂ while it rest। ਇਹ कंडीशन कदों ਹੁੰਦੀ है, तो सिंपल जी गल करना, कंडीशन उदों ਹੁੰਦੀ है एक आ ट्रेन है, आ ट्रेन दे विच मान लो तुसीं बैठे, ठीक है, आ ट्रेन दे विच ST सीरीज़ के सारे बंदे आपां लिया के उत्थे बाहर, एक आ ट्रेन है, ठीक है। ST सीरीज़ वाली ट्रेन काच करती आपां रैस्ट दे विच, ST सीरीज़ के सारे बंदे काच बैठे है, रैस्ट दे विच है। आ ते मैं कल्ला हो गया, तुहानूं सारिआं नूं मैं कल्ला बात आ, इह ते मैं कल्ला ही आ गया भी, ठीक है, ठीक है। मैं इनू चला रहा, ये मोशन दे विच, ये तुहाडी गड्डी है खड़ी है, ये उदों होगा जो मैं इहदे ओपोजिट चलाऊँगा। तुसीं कदे सिंपल जिहा इसदे विच लॉजिक है, कोई ओरिजिनली गल नहीं। एक मिनट थोड़ा जिहा इहनूं कर दिओ साफ, बोर्ड ही है बोर्ड दा बई उलझना काम है। आ मैं आ गया, अल्लाह भज्जी जाती है गड्डी, 100 ते तुहाडे तुसीं खड़े हो, ठीक है। ये गल दिमाग च रखियो, कड़े रहना है, पढ़ लो मैं गलों च पे इनू। तो आ चीज़ होगी, आ मेरी ट्रेन है, आ ट्रेन जी सी मैं ओपोजिट चलान लग गया। हुण तुहानूं जो तुसीं बारी थोड़ी देखोगे ना, तुहानूं लगूगा कि साडी ट्रेन भी की है चल रही है, क्योंकि सामने वाला काहदे विच है, मोशन दे विच है। ये सीन्स तुसीं देखे होणगे जिहड़े रेलवे च ट्रैवल करते ज़्यादातर, ये जी चीज़ वो ऑब्जर्व करते, ये चीज़ां सब ऑब्जर्व होंदियां चीज़ां। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आप अगे बढ़ते हैं। मोशन अलोंग आ स्ट्रेट लाइन है, इसका की मतलब है भाई स्ट्रेट लाइन च तुरे जाओ मोशन हो गया, मैं स्ट्रेट लाइन दे विच मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मान लो यार सिंपल जी कंसैप्ट इधर देखो, आ तुसीं हो, तुसीं कित्थे तुरन वाले हो, इत्थों तुर गए आ इत्थे पहुंच गए, तुरे गए, कुल्ली बंदा सीगा वही अपना के, ठीक है। वो तुर गया इत्थे पहुंच गया, ठीक है, इत्थे आके पहुंच गया, उन्हें इत्थे देखा भी ठीक है बल्लिया आ चीज़ हैगी है, उन्हें कहा ठीक है भाई जी पहुंच गया सिंपल स्ट्रेट लाइन दे विच। हुण मोशन या स्ट्रेट लाइन ते एक दो कंसैप्ट होंदे आ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ है भाई, डिस्टेंस तो तुसीं सुनिया होगा, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं सुनी होनी कभी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट। सारे नोट्स बना रहे हैं ना, नाल नाल नोट्स जरूर बना लियो। जे कोई आलसी है तो साडी वैबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लियो, आपां भी किसी होर दे चक्के हुए है, ठीक है, दसांगे तुहानूं। तां चलो डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट दी गल आ हैगा भाई, इत्थे आपां बंदा नहीं यार, ए नहीं, दो भरा है गुल्ली मुल्ली, ठीक है, दो भरा है गुल्ली एंड मुल्ली, ओके जी, गुल्ली एंड मुल्ली कितने रहिंदा है यार, चंगा ना रख
ਉਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਆ ਹੈਗਾ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਮੁੱਲੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੜਾਕੂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਨਾਲੇ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਮੁੱਲੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਆ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਮੁੱਲੀ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਓਏ ਬੋੜੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਮੁੱਲੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾਕੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਭੱਜਿਆ। ਮੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੁੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਪਕਾਈ ਮਰੀ ਨਾ। ਗੁੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੁੱਲੀ ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਥ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਲੀ ਐਂਡ ਮੁੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਲੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਹੋਮ, ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਚੱਕੋ 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 ਚੱਕੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਣ ਹਨੇਰੇ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵੀ 2 ਮੀਟਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੀਟਰ 'ਚ ਉਹਨੇ 5 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, 10 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਡ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀ 5 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 2 ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 10 ਸਕਿੰਟ ਕਰਤੀ, 10 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 10 ਮੀਟਰ ਕਰਤਾ, 10 ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਮੀਟਰ 5 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। 5 ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਤਾ, 2 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 5 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਨਈਕੁਅਲ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹਨ ਅਨਈਕੁਅਲ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਟਰਵਲ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੌਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ, ਨੌਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੌਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ, ਗਿਵ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਪਕਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜ ਦੋਗੇ। ਚਲੋ, ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬਈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਰੇ ਗਏ। ਕੁੱਲੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਲਿਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਦੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਬੋਲੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਲਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਲੋ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ।
ਆ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹੈ ਗੁੱਲੀ ਮੁੱਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਭਰਾ ਹੈ ਗੁੱਲੀ ਐਂਡ ਮੁੱਲੀ ओके जी गुल्ली एंड मुल्ली कितने रहंदा है ए यार चंगा ना नाम रख ओ हासे वाला नाम रखी आ है गुल्ली ते मुल्ली ठीक है ता गुल्ली है पढ़ने वाला पूरा पढ़ाकू किताबी कीड़ा बंदा ठीक है किताबी कीड़ा मैंने कई कह रहे होंगे मेरे वर्गा है ना कई बच्चे कह रहे मेरे वर्गा ते मुल्ली है भी शराब पी पूरा उन्होंने ऐ भी स्कूल तो वेल मिल जाए आ है स्कूल मान लॉकडाउन नहीं लगा है ठीक है गुल्ली ते मुल्ली जाए इतों गए ठीक है इतों जाना एक रास्ता स्कूल नूं ठीक है एक जाना रास्ता सीधा है अरे बॉडी हिल गया भाई ठीक है सीधा रास्ता जाऊंगा गुल्ली ते मुल्ली की मम्मी ने कहा जाओ बच्चे पढ़े हो है ना गुल्ली कहता भी मैं तो पढ़ाकू हाँ मैं तो सीधे रास्ते भज्या मुल्ली कहता आप टाइम ला के जावे उत्थे ओवर टाइम से की करना है ना मुल्ली का कितने पहुंच गया स्कूल पहुंच गया ठीक है कौन पहुंच गया मुल्ली पहला कौन पहुंचा होगा यार की पकाई मरी है ना गुल्ली पहुंचा सिंपल जी गल कौन पहुंचा गुल्ली ठीक है तो यार गुल्ली क्यों छेती पहुंचा क्योंकि उन्हें शॉर्टेस्ट पाथ जो सब तो छोटा पाथ थी सिंपल जी गल देखो दो बंदे सी गुल्ली एंड मुल्ली ਉਹਦੇ दो रस्ते एक लंबा रस्ता सीगा एक छोटा रस्ता सीगा ਜਿਹੜਾ सब तो छोटा रस्ता सीगा उतों गुल्ली गया वो कितने पहुंच गया आपदे थां ते पहुंच गया सब तो छोटेस्ट पार्ट होंदा है ਜਿਹੜਾ छोटा रस्ता होंदा शॉर्टेस्ट पाथ ठीक है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इनिशियल पॉइंट केड़ा होम भाई जितों चलना है इनिशियल का मतलब होता है चलना इनिशियल पॉइंट आ की है जी फाइनल पॉइंट ठीक है भाई जी एक ही है जी फाइनल पॉइंट और किताब दे दी भाई ये चक्को है ना फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ते फाइनल पॉइंट ये दोनों है जी एक इनिशियल पॉइंट है की है जी फाइनल पॉइंट है दोनों तो जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट इतने लिख लेंगे बस शॉर्टेस्ट पाथ आप गल कर रहे डिस्प्लेसमेंट की थोड़ा फोन आ गया जी तो डिस्प्लेसमेंट सीगा द शॉर्टेस्ट पाथ गुल्ली ने केड़ा पाथ कवर किया सी द शॉर्टेस्ट पाथ covered shortest path covered नहीं होगा between initial and final position या point ठीक है फाइनल पोजीशन भी आप कह सकते हैं फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं ठीक है जी ये चीज़ होगी डिस्टेंस की गल करिए डिस्टेंस की होंगे डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲੀ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਰਿਫਾਈਨ ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਮੁੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਪੁਰੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੋਟਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਮੁਕਤਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਗਏ ਬਠਿੰਡਾ इधर भी सिंपल रास्ता जी हम तो गए वाल वाला के ठीक है मुक्तसर का 30 किलोमीटर इतों भी ग्राम मान लो 20 किलोमीटर ठीक है 80 हो गया तुम डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 80 किलोमीटर है ना तो एक्चुअल जो डिस्टेंस सीगा विचारे दोनों का डिफरेंस सीगा 60 यार जाइए ना जान की गल नहीं जो शॉर्टेस्ट पाथ सी सब तो छोटा पाथ सी वो की सीगा छोटा रस्ता होंदा वो कितना सीगा 60 किलोमीटर तो जोड़ा वो सीगा घुमा के जो आप आए वो कितना 80 किलोमीटर तो एक्चुअल डिस्टेंस जो आप 80 वाले तो आए तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना आया 80 किलोमीटर हो गया इसका मतलब डिस्टेंस की डेफिनेशन बनती है द एक्चुअल पाथ
द एक्चुअल डिस्टेंस कह सकते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ नहीं सही लगता, एक्चुअल डिस्टेंस ही कहूँगा। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, बाय एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, दोनों की यूनिट्स की गल करिए, ऐसा भाई यूनिट्स ले लेंगे। यूनिट्स SI के हिसाब नाल इन्हां दी हुंदी है मीटर, ते CGSE के हिसाब नाल हुंदी है सेंटीमीटर, ठीक है जी। आ देखो ਤਾਂ वैसे CGSE ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ मीटर ही आऊगी। SI यूनिट की होंदी है दी मीटर, ठीक है, दोनों की यूनिट की होंदी है मीटर। डिस्प्लेसमेंट की गल करिए ना, डिस्प्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है। वैक्टर तो स्केलर भी बारे में मैं तुहानूं दसूँगा कि वैक्टर क्वांटिटीज़ की होंदी है, स्केलर क्वांटिटी की होंदी है, इस दे बारे भी दसदा। तो वैक्टर क्वांटिटीज़ के स्केलर बारे दसांगे, तो इस एक पॉइंट लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वैक्टर क्वांटिटी इज आर दूज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। displacement is vector quantity, okay, displacement is vector quantity। आगे करते हैं, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बे, शाबाश शाबाश शाबाश, स्केलर क्वांटिटी। चलो मैंने मिटे दी है ना, ये किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई। चलो मिटे जा रहे हैं भाई, शाबाश 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 शाबाश। उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस लिए स्क्रीनशीट के सारे कट्टे गए थे सीन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕੇਲਰ ਤੇ ਵੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਜ਼, स्केलर, ठीक है, क्वांटिटीज पा रही हैं, टू पाती मैं इधर की गल करते हैं तो वैक्टर। तो स्केलर के वैक्टर के की फर्क होना इसकी गल करता। मान लो आप ले लिया डिस्टेंस, तो सिंपल जी गल करते चल इनू छड्डो, छड्ड दो एक बारी आप मिटे देने एवं उलझते फिरते। मान लो अपना जो बंदा सी केस, ਉਹਨੂੰ मैं भेजा भी बाजार जा, उत्थे किसी KKP दी स्टोर है, जो भी स्टोर है उत्थे पीके स्टोर है, ठीक है। उत्थे जाके तू कह भी मैं पीके स्टोर तो की लेके आनी 3 साबुन ले। सिंपल जी गल है, मैं के पर्सन नूं कहा भी जाके तू पीके स्टोर तो 3 साबुन लिया। पीके उन्हें के वाला सीगा, वो कहंदा ठीक है भाई मैं जाना। कहना कित्थे जी है, मैं कहा जो सामने चौंक है ना उत्थे जी उधरों मुड़ेगा उधर है। उन्हें ऐसा सुन लिया भी मुड़ेगा, कहता ठीक है भज गया काली। फिर कहने ना काली अगे टोए काम करे ना होए, काली तो उन्हें गल ही उन्हें ऐ नहीं पूछा भी केड़े मोड़ में, ठीक है। वो गया आ गया कुल्ली भाई के पर्सन, ठीक है, इत्थे आ गया। चलो इतों मैं दोहरिया भज्या भजाया, इत्थे एक अगली जाती, एक आ जाती, इत्थे आ जाती, ठीक है। इत्थे एक बंदा बैठा स्टॉल ला के टी स्टॉल ला के बैठा, कहना भाई पीके स्टोर से जाना। इत्थे आके कहना पुछ लेना, चलो कहना भाई टी स्टॉल से जाना। वो कहना 5 किलोमीटर है। इन्हें फिर नहीं गल सुनी, पतंदर एजा बंदा है भी कहना मैं तो गल ही नहीं सुननी, ठीक है। कहना मैं नहीं गल सुननी, वो तेरा भाई अगाह 5 किलोमीटर 5 मीटर जावड़े जिन्ना भी, चलो 5 मीटर चला गया। जी एक्चुअल दुकान सी इतने सी, ठीक है। उन्हें कहा भी 5 मीटर जावड़ा, इन्हें डायरैक्शन पूछी या कोई भी चीज़ नहीं पूछी, तो इस नहीं एक ही होगी। इस जो डिस्टेंस होगा, मान लो इतों 5 मीटर सीगा, 5 कितना हो गया 10 मीटर हो गया है ना, कितना हो गया 10 मीटर है ना, कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ 2 ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ has magnitude only, ठीक है। इन्हें कोल की ਹੁੰਦਾ सिर्फ मैग्नीट्यूड ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, थोड़ी राइटिंग सुधारनी है, पूरी टेंशन ना लो। वेक्टर्स quantities are those quantities which have both magnitude and direction। जिमें तुहानू पता भी पढ़ना है, पर ऐ सोच रहे भी काहदे वास्ते पढ़ना है, नंबर वास्ते पढ़ना है कि कैसे चंगी चीज़ वास्ते पढ़ना है ना, वो चीज़ा भी डायरैक्शन है नहीं को। चलो आ चीज़ दोनों हो गई, यदा हो गई मैगनीट्यूड के डायरैक्शन की पक्की गल हो गई। हुण आपां अगे गल करते हैं भी होर की डिफरेंसिस होंदे इन्हां दे विच। इहदा स्क्रीनशॉट ला लो, जे किसी ने भी स्क्रीनशॉट लेना, मैं पासे हो गया नारे सीधा पूरे ती लेना। भाई किधर गए, लगी जी स्पीड ते वेलोसिटी। स्पीड का करनी तुझी कॉमन ही होगी, स्पीड कदे एक होंगी है, डिस्टेंस कौन टाइम है ना, टाइम है ना, स्पीड की डिस्टेंस मोन टाइम की होंगी है। सिंपल जी गल है। वेलोसिटी की होगी, वेलोसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी है, गल दिमाग च रखियो। तो वेलोसिटी है जी, वेलोसिटी होंगी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जोड़ा कंसैप्ट है ना स्पीड वाला, जिसे लिखा है एफ टी वाला, वो आही चीज़ है, ठीक है। इतने भी लिख लेंगे जी स्पीड होंगी है, वो होंगी है मतलब कि भी किन्नी दी स्पीड से जा रहा ऑब्जेक्ट है। मान लो कि यार वही बंदा कि हो गया, सिंपल स्पीड सी होंगी, डिस्टेंस जिन्ना कवर कर रहा सीगा उन्ना टाइम जिन्ना डिवाइड करके की आ रही सी स्पीड आ रही सी। डिस्टेंस जिन्ना मर्जी कवर हुआ हो, इस दे विच की डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो भाव है मतलब कि पहले ही बढ़ के हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट से टाइम दी ये वैक्टर क्वांटिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट की है वैक्टर क्वांटिटी। जो आप वैक्टर में किसी ना डिवाइड वगैरह करते हैं तो वैक्टर ही आता, ठीक है। तो ये भी की है, इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो दोनों एक ही दोनों की है अपना स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हम कई पता नहीं लग रहा है ना, विच ये मैं चुप कर गया सी। तो यार कहने का भाव की है बई, स्पीड होंगी है भी जिन्नी तक व्हीकल जा, वेलोसिटी वध भी हो सकती है, घट भी हो सकती है। सिंपल जी गल करना, जी वेलोसिटी है वो होंगी है भी एक्चुअल पाथ के टाइम की रेशो, द एक्चुअल पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ सॉरी, जो एक्चुअल पाथ ही कह सकते। पर ये होंगे भी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उस हिसाब से स्पीड हो, ठीक है। जी ये होंगी है भी कितनी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ के हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की रेशो, ठीक है।
जी डिसप्लेसमेंट है ना, एक गल होर है, डिसप्लेसमेंट नैगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, तो जीरो भी हो सकती है। जीरो किवें होगी ये भी गल बनता। मान लो एक ऑब्जैक्ट है ए पॉइंट है, उत्थों एक बंदा चलिया के बी ते पहुँच गया, ठीक है, बी ते पहुँच गया वो, हुण बी तो फिर वापस आ गया। मान लो डिस्टेंस ही 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर, 2 2 4। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ डिस्प्लेसमेंट की हुई ਹੁੰਦੀ, डिस्प्लेसमेंट की हुई जीरो, वो पॉइंट तो उसे ही आ गया, डिस्प्लेस की होया, कहने का भाव कि भी वो आपकी थां तो कितनी दूर गया, डिस्प्लेस किया जीरो, वापस जीरो, यह तो डिस्प्लेसमेंट की होगी यदि जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नैगेटिव, पॉजिटिव तो जीरो। नैगेटिव हो सकती है जो अगे जाओगे, वो कहते है जी ओपोजिट डायरैक्शन च गांह जाके तुहानूं पता लगेगा। परंतु जी स्पीड है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की गल की सी ना, परंतु जो डिस्टेंस है वो कदे भी नैगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, नैगेटिव हो सकता, सॉरी पॉजिटिव तो होंदा ही है, नैगेटिव नहीं हो सकता तो जीरो भी नहीं हो सकता। तो सिंपल जी गल है, डिस्टेंस नैगेटिव पॉजिटिव और नैगेटिव जीरो नहीं हो सकता, तो स्पीड भी की है नैगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। लिख लेते हैं डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट चाहे की लिख लो, स्पीड कैन नाइदर बी जीरो और नैगेटिव। जे किसी को कंसैप्ट नहीं समझा एक बार फिर देख लो, नहीं तो मैं दस दूँगा बाई बी जीरो और नैगेटिव है ना, टेबल पर यार थोड़ी जी राइटिंग करांगे, साफ टेंशन ना ला करो। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इधर जो तुम नहीं लिखना कैन नॉट बी, सिंपल जो लिख दो स्पीड इज ओनली पॉजिटिव, ठीक है, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ठीक है जी। ये तो सिंपल जी गल है, नैगेटिव पॉजिटिव और जीरो, सिंपल जहा कंसैप्ट है वेलोसिटी ते स्पीड दे विच, सिंपल जहा ही डिफरेंस है। स्क्रीनशॉट लेना लै लो, बाकी राइटिंग का तुहानूं पता ही कितनी साफ है। कंसैप्ट है एवरेज स्पीड ते एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड ते एवरेज वेलोसिटी तो पहला एक तुहानूं सिंपल जी गल पुछना चाहूँ, एवरेज स्पीड ते एवरेज वेलोसिटी होंदी की है? एवरेज वो तो तुहानूं दसनी है, सॉरी एवरेज का मतलब की होंदा, भी कहण दा भाव एवरेज की होंदी है। एवरेज की होंदी है जिवें आपां मोटरसाइकिल की एवरेज कढदे है ना, भी 22 की एवरेज दे दिंदा, 23 की एवरेज दे दिंदा, 24 की एवरेज दे दिंदा, 25 की एवरेज दिंदा, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग एवरेज होंदी। तो वो एवरेज किवें कढदे आ, भी टोटल डिस्टेंस ते कर लैंदे आ, ते आपां देख लैंदे आ भी तेल किन्ने दा पवाया सी, है ना, भी किन्ने लीटर सीगा पर बाई लीटर कर दिंदे। तो हुण इह एवरेज स्पीड कड्ढनी है, पहलां तो एवरेज स्पीड की गल करदे। तो एवरेज स्पीड की हुंदी, किवें कड्ढनी? पहले आप गल करते हैं की चीज़ है। मान लो तुसी जा रहे हो, तुसी ट्रिप प्लान किया कोटपुरा तो बठिंडा, ओके, कोटपुरे तो बठिंडे जाना 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, तुसी 30 किलोमीटर तक स्पीड पूरी 40 की रखी, 40 की रखी, ठीक है। उदों बाद तुसी करती 60 की, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड होगी। हुण तुहानूं किसी ने पूछा भी तुहाडी टोटल स्पीड कितनी सी, पहलां 40 ते जा रहे थे आपां, हुण करते करती 60 ते थोड़ा डाक कर देना, हाँ 40 60 डिग्गी है ना या चौक 40 ते 60। तो तुसी एवरेज स्पीड पूछूगा, तुसी कोई कहते 40 ते 60 ते, एवरेज का मतलब विचाले वाली एवरेज है ना। तो मीन करते होंगे आप एवरेज कड्ढण वास्ते, एवरेज मीन तो सिंपल जो एवरेज मीन का मतलब, एवरेज मीन है तो मतलब करना कि दोनों सामू 2 देना डिवाइड, तो 40 + 60 डिवाइड बाय 2 100 आ जाऊगा, 100/2 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर ली गए। तुम देख लो करी 40 का 60 100 आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 के नाल जो अपन कर दिता डिवाइड कर दिया, मैंने लगता थोड़ा ब्लैक बोर्ड वाह भीड़ा दिख रहा, मैं लग रहा है चलो ये ठीक है। तुझे गल श्योरली मेरी समझ नहीं होगी बई, एक बंदा सीगा कोटपुरा तो बठिंडा जाना है, पहला 40 किलोमीटर फिर 60 किलोमीटर फिर 40 60 से वही सारा कुछ ही चली गया, यह होगी एवरेज स्पीड की गल। तो फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला की कर लगता, एवरेज स्पीड जी 40 सी वो स्पीड की सी तुहाडी पहला वाली स्पीड, पहला वास्ते आप की वरतते हैं इनीशियल वर्ड
ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2 क्या क्या आ जाएगा, इनिशियल स्पीड बाय फाइनल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। एक गल तुम ध्यान में समझो भी इनिशियल की 40 किलोमीटर बाद जब 60 करते की थी फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। इसी तरह ही वेलोसिटी के केस के वेलोसिटी के केस के भी गल करते हैं, यह होगी स्पीड की गल। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ मीटर पर सेकेंड। फाइनल की होगी 2 मीटर पर सेकेंड। एक गल हो रहा है जी इनिशियल वेलोसिटी होंगी उन्होंने कहते यू, फाइनल वेलोसिटी डिनोट किया जाता है। तो ये कहते आएगी यू प्लस वी इक्वल टू 2। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं अरेज कर लेना करूँगा। कई तो कह रहे है ना करते बस एक चीज़ रह गई, एक्सरलेशन का कंसैप्ट रह गया। आप करते हैं एक्सरलेशन, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NCERT ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ ਪੇਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਓ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। तो आप एक 2 ਲੈਕਚਰ बनावे, एक तो नूमेरिकल्स के वास्ते, एक क्वेश्चन के वास्ते, तो एक उन्होंने वास्ते 3 ही बन जाएंगे। और एक विच ही कवर कर लेंगे, तो तुहानूं उन्होंने आंसर आप लास्ट तक करावांगे। ठीक है, जरूर करिए एक्सरलेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सिंपल जी गल करते हैं, मान लो बंदा सी के फिर के ठीक है, के पर्सन सीगा वो चलिया, उनकी वेलोसिटी सी 2 सेकेंड चलिया, जिमें मैं ला लूँ इन्ना डिस्टेंस चलिया, उन्हें इन्ने डिस्टेंस वेलोसिटी रही 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगे गल करते हैं उन्हें, फिर अगे आ गया, अगे गल करते हैं उन्हें इतने वेलोसिटी करती 4 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी की सी इनिशियल वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड उन्हें वेलोसिटी की है। इनिशियल वेलोसिटी जी सी उन्हें सब तो पहला वाली वेलोसिटी से कहते इनिशियल वेलोसिटी। तो 2 मीटर पर सेकेंड की थी इनिशियल वेलोसिटी, तो वी है कि उनकी भी हम जी वेलोसिटी यू होंगी है जी चलन तो पहला, जी 2 होंगी है जी चलन तो बाद हो जाती है। ठीक है, यू तो बाद 2, तो यही चीज़ होगी 2 तो बाद होगी 4 मीटर पर। तो हुण जी आप एक्सरलेशन हुंदा की है, एक्सरलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, भी जी वेलोसिटी है किहड़े रेट से चेंज हो रही है। तो कहने का भाव की है भी जी वेलोसिटी है चेंज हो रही है, तो किहदे रिस्पैक्टिव चेंज होगी, टाइम के रिस्पैक्टिव चेंज होगी है ना। वेलोसिटी का रिस्पैक्टिव चेंज होगी, टाइम के रिस्पैक्टिव चेंज होगी, यानी टाइम तो सेम ही रहूगा। नॉन यूनीफॉर्म मोशन की गल कर रहे हैं आप, यूनीफॉर्म मोशन की गल नहीं कर रहे भी जिस टाइम की है जोड़ा की डिस्टेंसिस जोड़े की इक्वल टाइम इंटरवल्स है, तो डिस्टेंसिस की है अनइक्वल है, उस समय की गल कर रहे हैं आप। तो उस टाइम जी वेलोसिटी है कि चेंज होगी है ना, टाइम इंटरवल तो कॉन्सटेंट रहूगा। तो एक्सरलेशन जी है ना, एक्सरलेशन की होंगी है, एक्सरलेशन आप देवांगे चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। कई लोग तो इन्हें चंगी तरह पता होगा भी की होंगी एक्सरलेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। भाई कहने का भाव है भी जो वेलोसिटी से चेंज होया, वेलोसिटी चेंज होया टाइम के रिस्पैक्टिव, भी नॉन यूनीफॉर्म मोशन की गल कर रहे हैं जिथे टाइम की है यानी कि इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल्स की है इक्वल है। ठीक है, एक्सरलेशन तो जो टाइम है ना इक्वल है, तो वेलोसिटी के चेंज जो चेंज है मान लो ये चेंज किन्ने का है 2 मीटर का है, तो किमें पता लगे 4 - 2, तो चेंज इन वेलोसिटी क्यों v - u बाय t
टी। ये सिंपल जी गल है भी एक्सलरेशन की गल होगी वी माइनस यू बाई बटा टी के रिस्पैक्टिव। अगे गल कर रहे हैं एक्सलरेशन के रिलेटेड एक पॉइंट है बई जे वेलोसिटी पॉजिटिव नैगेटिव तो जीरो हो सकती है तो एक्सलरेशन क्यों नहीं, ठीक है। तो एक्सलरेशन भी की हो सकती है एक्सलरेशन क्योंकि वेलोसिटी उत्ते है ना, वेलोसिटी उत्ते है जो आप इतने जो नैगेटिव आ गई तो टाइम तो जो पॉजिटिव ही रहूगा तो उसकी आ जाएगी नैगेटिव, जैसे जीरो आ गई तो जीरो आ जाऊगा, पॉजिटिव था पॉजिटिव। एक्सलेशन कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो बन जा हीरो, ठीक है जी। आइसोलेशन कैन बी पॉजिटिव नैगेटिव और जीरो। यही अज का जो अपना लैक्चर सीगा मोशन इन स्टेट लाइन का पहला पार्ट। अगे आप जो ग्राफिकल जो रिप्रजेंटेशन अगे करांगे तुसीं इसनूं चंगी तरह रिवाइज कर लो, कल अगला पार्ट जरूर मिल जूगा। बाय बाय, कल मिलांगे फिर। चलो चलो जाके पढ़ लो, भज्जी होना इत्थों कदे भी, तुहानूं नोट्स मिल जाएंगे वैबसाइट के उत्ते ते जिहड़े क्वेश्चन आंसर है जरूर सॉल्व करियो ते इंस्टा के जिहड़े डाउट्स है जरूर DM कर दिया करो यार, जे कमेंट्स 'च दस दिया करो।